कभी फाइनेंशियल टफनेस भी आए फैमिली में या कोई चैलेंज आए, सो वी शुड बी स्टैंडिंग बिकॉज वी आर शक्ति। कहते हैं ना, नारी तू शक्ति है। अपनी फाइनेंशियल ताकत को भी पहचान, अपने डिसीजन मेकिंग पावर को भी पहचान। That lists down 5 steps in which women can become financially free, और वो financial freedom को achieve कर सकते हैं 5 steps में। Welcome to this episode of the Genius Well Show. Today we are having Abhilasha ma'am. She is a very good friend of mine and we have met so many times. We share a very good connection. And today we are going to talk on a topic which is very close to both of us. So this is going to be very, very exciting. Welcome to the Genius Well Show, Abhilasha ma'am. First of all, I would like to thank you for giving me this opportunity because there are many points which we always want to discuss, but it happens that कहीं ना कहीं रह जाता है. So let's talk about this, that you have seen so many humans in your entire life, your journey, and you met a lot of them. So can you list down the pain points of women when it comes to money and managing their finances? What are the pain points that they have? We all know this, but we don't realize. We keep it aside because we are not the priority. Our priority is before marriage, our studies or our family with whom we are living. We give them the priority because it is basic nature of a woman. God has gifted the women with that power that she always keeps others first, be in any stage. So they don't give time to themselves for their learning, for making them financially aware. So first point, I think there is no time for themselves. That is why this is not being shown up. First, after marriage also, first family is the priority, taking care of the children, taking care of in-laws, husband. So we don't hold the 24 hours also less for us. They rely on male members. They think that male members will be taking proper decisions because there is a blueprint in their mind that only male people decide for finance. This is what I had seen in my family, this is what you might have seen in your family, but we are breaking that situation now and we are changing the situation, and we are giving a new way to the life and to the journey of all the women. So lack of awareness, confidence in themselves, always they'll be thinking that if we take any decision, it might be possible that that decision is not right, and if they fail, then they'll have to listen from the male members. Or else, sometimes I've even seen some of my clients, they are doing over research, like too much analysis is like paralysis. So they are talking to each and every person कि ये investment किया, ये सही होगा कि नहीं. तो अपने पे confidence ना रख के, what we are doing that, we are asking many people, and so much analysis is ultimately leading to paralysis. So we should have confidence in ourselves in what we are doing, like the way we used to study. Like किसी को डॉक्टर अगर बनना होता है तो उसको खुद पे कॉन्फिडेंस था, आज ही वो, इसीलिए वो आज लेडी डॉक्टर बन पाई है. सेम वे फाइनेंस इज ऑल्सो अ थिंग कि, और मेन बात है कि हम लोग बोलचाल में इसको नहीं लाते हैं. क्या होता है कि वी टॉक अबाउट स्नैक्स, वी टॉक अबाउट डिशेस, वी टॉक अबाउट ड्रेसेस, इवेंट्स, but we don't talk about finance. So we think that this is not our cup of tea. So अभी इसको रूटीन में लाना जरूरी है. Yeah. Absolutely. I agree to you on this point that they don't have the awareness, they are not given that authority in their life. So now let's talk on this, that now we know what is going wrong. Now, how can we change Yes. that? So, what are the Yeah. 3 ways or 3 steps in which they can start taking charge of their own money? Yeah, definitely, definitely. In this era, we can see there are n number of events which are happening, like many seminars, even webinars are happening on financial awareness. So women should participate. Like they are telling their husbands also. Facebook तो आजकल हर कोई देखता है. YouTube भी खोलो तो एक ना किसी फाइनेंशियल ट्यूटर का या जो कोच होता है उनका वीडियोस आता ही है. सो दे इन्फॉर्म देयर हस्बैंड और देयर ब्रदर, देखो ये इवेंट हो रहा है, आप जा सकते हो. तो वी शुड टेक द चार्ज. हमें जाना चाहिए, हमें अपनी और फीमेल फ्रेंड्स को लेके जाना चाहिए, लाइक वी गो फॉर शॉपिंग. सो एक फाइनेंशियल लर्निंग के लिए, वो जर्नी हमें स्टार्ट करने के लिए, वी शुड गो फॉर आवर फाइनेंशियल लर्निंग. सो वो एक प्रायोरिटी होनी चाहिए. एटलीस्ट वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ, जो भी जैसे भी अवेलेबल हो, क्योंकि ऑनलाइन भी ये सब अवेलेबल होता है. तो ड्यूरिंग द डे ऑल्सो वी कैन सी की मतलब 15 मिनट हमने कुछ एक अच्छा ब्लॉग पढ़ लिया, सो दैट हमारी अवेयरनेस बढ़े. क्योंकि आजकल ब्लॉग्स भी बहुत अच्छे अवेलेबल है, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, और या फिर दूसरे जो मिंट टाइप की जो एजुकेशनल वो आती हैं, ताकि
इससे एक और अच्छी बात होगी कि हम नेक्स्ट जनरेशन को भी ये गिफ्ट देके जाएंगे. व्हेन आवर डॉटर्स, व्हेन आवर सिस्टर्स विल सी दैट वी आर रीडिंग दैट, सो दे विल कम टू नो कि हाँ, किचन के अलावा और ड्रेसेस के अलावा ये भी एक पॉइंट है जिसपे हमें समय देना चाहिए. तो अपने टाइम को उस तरह से डिवाइड करना चाहिए, व्हाट आई फील. And we should know our numbers, like whatever investment is happening in the family, we keep ourselves aside, we don't interfere. We feel that it is interference, but it is actually, we should know that. So we should know our numbers कि कहाँ हस्बैंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ हमारे नाम से इन्वेस्टमेंट. और इवन फीमेल डोंट नो, वो सिंपली साइन कर देते हैं फॉर्म पे वेरेवर हस्बैंड सेज कि यहाँ साइन कर दो, तो उनको लगता है हमारी ड्यूटी हो गई. बट दे शुड आस्क, ये कहाँ साइन करवा रहे हो. तो उससे क्या है, उनकी एक अवेयरनेस बढ़ेगी. उसके उससे रिलेटेड और 2 क्वेश्चन्स आएँगे उनके मन में कि ये क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं किया जा रहा, एंड अभी तक जो हम लोग ट्रेडिशनल फॉलो करते आए हैं एफडीज़, वो क्यों नहीं की जा रही है. तो एक हेल्दी डिस्कशन होगा, एक डिस्कशन ओवर टेबल होना चाहिए, ताकि बच्चों को भी स्टार्टिंग से फाइनेंशियल अवेयरनेस मिले. व्हेन वी सिट ओवर डिनर और फॉर लंच, देन दिस टॉपिक ऑफ डिस्कशन शुड हैपन कि पापा ने आज ये चीज़ पढ़ी, तो बच्चों के साथ भी डिस्कस किया, वाइफ के साथ भी डिस्कस किया. और एक सिंपल होता है, मैं आपको बताऊं, 50-30-20 रेशियो का एक कंसेप्ट होता है, जिसमें 50% आप अपनी नेसेसिटी में दे दें, 30% आप अपने डिजायर्स, जो भी आपकी वांट्स हैं, उनको पूरा करने में दें, और 20% मिनिमम अपना इन्वेस्टमेंट सेविंग में जाना चाहिए. जैसे ये पर्सन टू पर्सन दिस विल वैरी, बट स्टिल एक जनरल अगर हम कहा जाए तो 50-30-20 रेशियो अगर स्टार्ट कोई कर रहा है, इनिशियल स्टेज में है, सो दे कैन फॉलो. उसके बाद तो बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं, फिर डीपली जब जाएंगे तो लाइक यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ जार, so someday we can talk on that jar concept also. So Yes, and she should make family aware कि इमरजेंसी फंड्स मेंटेन करने चाहिए, एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स का एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए. और फीमेल्स पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती. कई बार हम लोग ने देखा भी है कि जब कभी मेल को भी अपना दिक्कत आ जाती है, तो फीमेल डब्बा खोल के अपना निकालती हैं, और वहां से बहुत सारे दाल के डब्बों में से, चावल के डब्बों में से निकलते हैं. सो अभी फीमेल को ये माइंडसेट शिफ्ट करना चाहिए कि नॉट ओनली दैट डब्बा मनी विल वर्क, नाउ समथिंग मोर वी हैव टू प्लान. लाइक वी आर अ गुड मैनेजर of managing home, respecting guests, welcoming them, building a relationship with people. So we should have that confidence कि we are also good at managing money. फ्रेंडशिप विद फाइनेंस जो है ना, वो वुमेन का बहुत जरूरी है, और ये फ्रेंडशिप उनको आगे चल के इतनी हेल्प करेगी कि दे विल नेवर रिग्रेट कि ये फ्रेंडशिप मैंने कैसे की. क्योंकि फिर एंड मुझे ऐसा लगता है कि अपने जो इवन सैलरीज भी होती है ना, वो भी फीमेल्स को हक से नेगोशिएट करनी चाहिए. कभी कभी कई प्राइवेट सेक्टर में दे सिट, मतलब कि हाँ ठीक है, सेटिस्फाइड है, मेल मेंबर को भले थोड़ा डिफरेंशिएट करके ज्यादा सैलरीज मिल रही है बिकॉज दे आर सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स. अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आई यूज टू वर्क फ्रॉम 9:30 to 8:30 along with my male employees. I had that same, and we had in PSU we don't have that differentiation. But हाँ, एक रहता था कि हाँ फीमेल है तो जब भी स्टॉक मार्केट का डिस्कशन हो या म्यूचुअल फंड का डिस्कशन, तो वी वर केप्ट आउटसाइड. बट आई स्टार्टेड एंटरिंग इनटू दैट एंड नोइंग देम, सो दैट मैं भी अपने कुछ इनपुट्स दे सकूं, उनसे कुछ लर्न कर सकूं. और एवरीडे, मतलब कहते हैं ना, बातों में फाइनेंस आना चाहिए, तो वो एक हमें डेली रूटीन में वो चीजें लानी है. और सबसे अच्छी बात है कि वी कैन नॉट बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग, सो वी शुड, लाइक स्पिरिचुअल पाथ में भी एक गुरु की जरूरत होती है. हमें एजुकेशन, जो ट्रेडिशनल लर्निंग हमने की, उसमें हमें एक टीचर की जरूरत थी. वैसे ही एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक फाइनेंशियल मेंटर के साथ जुड़ जाना चाहिए. एंड वी शुड सरेंडर आवरसेल्फ. और थोड़ा टाइम लगाओ भले फाइंड आउट करने में, लेकिन वंस यू गेट दैट यू हैव टू रिलाई ऑन दैट. लाइक आई एम इनटू द प्रोफेशन वेयर आई एम ट्रेनिंग n number of women. I have many women candidates under me whom I'm training and making them financially aware, and they should, I'm making them aware that they should not depend on their husband's salary only. That should not be the only source of income. So we give them trainings, we train them to how to become self dependent. So it is a journey, and my target is to meet and educate more and more women. At the minimum 1 lakh women should be there, so wow. that in my life journey I can help them in becoming financially independent and gaining that confidence. Yeah.
आपने Yeah. मेंटोर की बात की, दैट अ मेंटोर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. If we Yes. see in our Indian background as well, our Indian history as well, when we talk about Mahabharat, Arjun had a mentor Krishna, and that is why he Yes. was able to come out of the the chaos which was happening in Kurukshetra, and so many examples we are having in our history. So my question to you is, how to find the right mentor in our life? Yeah. It's a very important thing, but yet it's a very difficult thing as well, how to find the right mentor. Yes, absolutely. Very good question. At least we should know the way how we should find a mentor. So there are many ways, like we can सर्च इन आजकल इंटरनेट पे कितने सारे फैसिलिटीज हैं, तो उसमें भी हम लोग सर्च कर सकते हैं कि एक तो पहले तो क्या बोलते हैं कि अपना पहले हमें डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि हमारी चॉइस क्या है, इन विच लाइन वी हैव टू गो। लाइक फॉर फाइनेंशियल मेंटर, इफ यू आर टॉकिंग ऑन फाइनेंस, सो फाइनेंशियल मेंटर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वी शुड लिस्ट डाउन दैट क्वालिटीज, और वी शुड लिसन टू अ नंबर ऑफ पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, और फिर जिनके साथ हमारी ट्यूनिंग बैठे। इट इज नॉट दैट इफ सपोज आई एम हेल्पिंग 20 people, so the 21st person who will come to me will also understand, because हो सकता है हमारी ट्यूनिंग उनके साथ ना, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हो, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कुछ और हो, लेकिन अगर ट्यूनिंग बैठ जाए और अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, तो हमें उस पर कर देना चाहिए। पहले उनका नॉलेज देखना चाहिए, हाउ मच डेडिकेशन। एंड व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय हस्बैंड इज दैट योर इंटेंशन शुड बी प्योर। अगर मैं वी आर like I was in bank now, I used to sell product and about, but when I have joined this financial journey, I have come to know that we are not selling product, we are selling concept, we are making them aware, we are giving them solutions. So the financial mentor should also train you like that only, that आपके जो क्लचेस है ना दिमाग के, वो निकलने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आपको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए कि यस, व्हाट यू आर डूइंग इज राइट। एक डर मन से निकलना चाहिए। और मेरी मम्मी तो कहते थे कि व्हेन आई यूज्ड टू मेक सम न्यू वेजिटेबल ना, शी यूज्ड टू टेल कि कोई बात नहीं बेटा, एक बार गलती करेंगे लेकिन सीखेंगे तो जरूर, तो डोंट फियर। सो आई यूज्ड टू मेक वेरी टेस्टी वेजिटेबल, तो फादर यूज्ड टू टेल मी कि आज तो मम्मी से भी अच्छा खाना बना है। तो दिस इज ओनली द थिंग, if you get someone who pushes you but with a lots of love and gives you confidence कि whatever you are doing, कोई बात नहीं, अगर थोड़ी गलती होती है तो चलेगा। Like you are also a great example where your father is supporting you, your parents are mother is supporting you. So many times you might be feeling कि कहीं कुछ मिस्टेक रह गई या कहीं कुछ लैक रह गया, लेकिन you learned a lot from that. So we should have that confidence, and the person mentoring us शुड मेक अस कॉन्फिडेंट कि ये जो अगर जर्नी में कुछ गलतियां भी होती हैं तो वो एक लर्निंग लेसन है। लाइक आई हैड अ मेंटर with whom I am learning this financial journey specifically for women, because she is dealing with लक्ष्मी ज्ञान। वो कहते हैं कि लक्ष्मी ज्ञान से ही मिलेगा लक्ष्मी मान। तो अगर हमें मान चाहिए तो हमें उसका ज्ञान लेना पड़ेगा। लाइक जब हमारी कुकिंग एबिलिटी बढ़ गई, तभी हमें मतलब घर में एक रिस्पेक्ट मिलने लगी कि हाँ, इनके हाथ का ये डिश तो बहुत अच्छा होता है। वैसे ही फाइनेंस से रिलेटेड भी ये चीज है। तो उन्होंने भी मेरे को यही सिखाया कि दोस्ती करनी बहुत जरूरी है, और अपने को जितना ज्यादा इस चीज को अपने लाएंगे अपने रूटीन में, उतना ही हमें हेल्प मिलेगी। तो मेंटर चूज करने के लिए यही हो जिसके साथ आपका कनेक्शन हो जाए, उनके साथ आप आगे बढ़ो। Yes, so beautifully आपने explain किया कि how to find the थैंक यू। right mentor. So if any girl, any woman is watching this and you want to take the charge of your financial management, your financial freedom journey, then I think Abhilasha ma'am is the best person for you. Ma'am, if someone थैंक wants यू। to connect with you, वो कैसे connect करे आपके साथ? मेरा इंस्टाग्राम पेज है, और बाकी आप चाहो तो मैं डिटेल्स भी दे सकती हूँ आपको, अगर आप कहीं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना चाहो। सो आई कैन शेयर माय नंबर, माय ईमेल आईडी। आई एम ऑलवेज अवेलेबल and happy to help people more and more, because now though I am getting a number of calls like that only, people are watching us. And recently we had been to ONGC, I would like to share with that। ONGC Baroda mein hai na, we both had gone, so there we met so many women, so they are contacting us each day, and they are coming back to us because they felt that हम लोग ने ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन भी ये बात कही कि फाइंड अ प्रॉपर एडवाइजर। तो उसी समय दे हैड टेकन अ डिसीजन, दैट वाज आवर अचीवमेंट बाय गॉड्स ग्रेस, कि दे टोल्ड यस वी हैव फाउंड आवर फाइनेंशियल एडवाइजर। एंड
वी आर नॉट एक्चुअली फाइनेंशियल एडवाइजर, आई वुड से वी शुड बिकम लाइफ एडवाइजर, ताकि कोई भी डिसीजन लेना हो ना तो वो आपसे पहले कंसल्ट करें, आप इतना ज्यादा वो आप पे विश्वास करें कि अपनी लाइफ का भी डिसीजन। आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट when my husband was having a one to one meeting, though that client was sitting just for the purpose of planning a second child. He first asked him, he did his financial planning, and then he told कि sir मेरा दूसरा बच्चा आना चाहिए कि नहीं ये भी मैं इसके बाद ही डिसाइड करूंगा। सो इट वाज ग्रेट अचीवमेंट कि पीपल आर रिलाइंग सो मच। इवन इन वन ऑफ द वेबिनार that participant during the testimonial he told ki I want to gift your financial planning session to all the newly wed couples who are at whom I meet, and instead of giving them cover or gift I'll give them your financial planning. So that is our achievement, so we feel that blessed ki ha people are relying so much on us, and कुछ भी डिसीजन लेना होता है ना, इवन अपना कुछ नया उनके घर में भी उनको लाना होता है तो दे आर कॉलिंग अस एंड आस्किंग कि ये ठीक रहेगा ना, वी कैन डू दैट। तो दैट इज वेरी मच गुड, मतलब सेटिस्फैक्टरी लगता है। Now let's wrap this up with one last question, one very important question, that lists down 5 steps in which women can become financially free, और वो financial freedom को achieve कर सकते हैं 5 steps में। ओके, सो सबसे पहले तो मैं लाइन भी कहना चाहूंगी विमेन्स के लिए कि प्लीज डोंट वेट फॉर द क्राइसिस टू हैपन एंड देन यू रियलाइज कि फाइनेंशियल डिसीजंस हमें लेना चाहिए, घर पे कोई ऐसा मिस हैपनिंग हो जाए या फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाए, सो उस दिन का वेट मत करिए, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा, ऐसा ही आप सोच के चलो कि आप दोनों ही संभालोगे। और सिंस यू आर अर्निंग, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि अर्निंग मेंबर, जैसे एक टर्म प्लान होता है, टर्म इंश्योरेंस होता है, वो अगर आप अर्निंग मेंबर है तो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फॉर द फैमिली, तो वो एक टर्म प्लान अपना होना ही चाहिए। मतलब अ, एक दिन अपना महीने का उनको दे शुड फिक्स कि फाइनेंशियल बजटिंग, मेरे इन्वेस्टमेंट्स कहाँ है, मेरी इनकम कितनी है, हाउस इनकम। हस्बैंड वाइफ को जॉइंटली, जैसे हम लंच पे, डिनर पे, मूवी पे जाते हैं, वैसे एक दिन उनको फिक्स कर लेना चाहिए कि आज हमारा फाइनेंशियल बजटिंग का डे है। सो अगर बच्चों को बैठना है तो वेलकम, नहीं तो हस्बैंड वाइफ को तो जॉइंटली बैठ के और पूरा लिस्ट डाउन करना चाहिए। लाइक आई ऑल्सो फॉलो विथ माई हस्बैंड, once in 2-3 months we sit and we have made an excel sheet where we have put our investments, we have put our IDs, दैट लॉगिन आईडी पासवर्ड। और फिर हमारा अगर किसी के थ्रू हो रहा है, जैसे मोस्टली तो हमारा, क्योंकि वी आर इनटू फाइनेंशियल फील्ड, सो एग्जीक्यूशन भी हमारा कोर है। सो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, सारे सॉल्यूशंस हम खुद ही करते हैं, लेकिन स्टिल हमने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी तो वी हैड टेकन हेल्प ऑफ few people who are our mentors also, like you told mentor कौन, तो हर दिन किसी न किसी से तो सीखते ही हैं, जैसे मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है, तो थैंक्स टू यू फॉर दैट। सो every day is a learning process, we should learn from everybody, so ओपन रहना चाहिए कि कहीं पर भी कोई डिस्कशन हो रहा है तो उनको वहां पे इन्वॉल्व होना चाहिए, खुद से बात करनी चाहिए। अगर दो मेल्स भी बात कर रहे हैं तो उनकी बात कभी कभी सुन लेनी चाहिए कि बात क्या हो रही है, तो उससे भी अपने को काफी कुछ सीखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी से हमें थोड़ा यूज टू होना चाहिए। लाइक अभी भी व्हेन आई वाज इन बैंक, द फीमेल्स यूज्ड टू से कि मैम इंटरनेट बैंकिंग तो नहीं आता है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इट इज वेरी इजी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एंड द सिस्टम इज आल्सो यूजर फ्रेंडली। सो इंटरनेट बैंकिंग जानना, अपना खुद का डीमैट अकाउंट खोलो, उसमें छोटे छोटे शेयर्स खरीदना स्टार्ट करो, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, तो क्या है, एक कॉन्फिडेंस आएगा। भले ही उसका फिगर कभी कभी नीचे जाता हुआ दिखेगा, पर पैनिक नहीं होने का, बिकॉज ये प्रोसेस जर्नी लंबी है। सो पेशेंस इज द की, यू नीड टू कीप द पेशेंस ऑल्सो। सो अपने अकाउंट में मूवमेंट कैसा हो रहा है, इनकम आ रही है, फिर उसको कैसे स्पेंड किया जा रहा है, ये वॉच करना। धीरे धीरे खुद का एक रिकॉर्डिंग, कुछ लोग नेट से अगर मतलब अगर सिस्टम से, कंप्यूटर से अगर इतने यूज टू नहीं है तो दे कैन मेक अ डायरी, फाइनेंशियल डायरी, तो उसमें वो लिख सकते हैं कि इस मंथ इतना इनकम आई और हमने कहाँ कहाँ स्पेंड किया। तो उससे क्या है, उनके जो एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये कंसेप्ट अब चेंज हो चुका है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, अभी हमको इनकम माइनस
सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कर एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तभी हमारा जो है नेटवर्थ बढ़ेगा और हम और भी ज़्यादा ड्रीम्स जो है हमारी उसको फुलफिल कर पाएँगे। अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, अपने हस्बैंड, अपने चिल्ड्रन के गोल्स जो हैं जैसे एजुकेशन हो गया, उनकी मैरिज हो गई, वो हम फ़िक्र फ्री कर पाएँगे। सो फ़िक्र फ्री करने के लिए प्लानिंग जितना हो सके अर्ली स्टार्ट करना चाहिए और स्मॉल स्टेप्स लेने का। इट इज़ नॉट दैट आप बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट्स करो। जैसे कोई भी किसी का इनिशियल बिगिनिंग होती है तो आज ₹500 से भी एसआईपी होती है। मैं तो अपने बेटे की ₹100 पर डे की एसआईपी करती हूँ, तो व्हाटएवर इज सूटेबल फॉर यू, यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन सी दैट वॉचिंग, मतलब ग्रोइंग एंड ऑल। तो वो एक ग्रोथ जो होगी वो अपने को कॉन्फिडेंस देगी। कहीं न कहीं वो सिस्टम जो हम सेट करेंगे ना, वो सिस्टम मतलब हमारा पैसा ही हमें कमा के देगा, ये एश्योरेंस मिलता है अगर आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं तो। और एवरीडे एक अफर्मेशन डायरी भी बनानी चाहिए कि आई एम बिकमिंग फाइनेंशियली फ्री, आई एम टेकिंग माय फाइनेंशियल डिसीजंस। तो वो अफर्मेशन जो है, जैसे हम डेली उठ के गीता पढ़ते हैं, हम माला जाप करते हैं, तो वो क्या है हमारे अंदर आ चुका है। सांस-सांस में भी कभी व्हेन वी आर हैविंग लिटिल बिट टेंशन इन आवर माइंड, तो हम ईश्वर को याद करते हैं। तो वही है, जब कभी फाइनेंशियल टफनेस भी आए फैमिली में या कोई चैलेंज आए, सो वी शुड बी स्टैंडिंग बिकॉज़ वी आर शक्ति। कहते हैं ना, नारी तू शक्ति है, अपनी फाइनेंशियल ताकत को भी पहचान, अपने डिसीजन मेकिंग पावर को भी पहचान, तो वो हर जगह एप्लीकेबल है। इट्स जस्ट दैट एक स्टेप उठाना है हमें और हम अभी तक उसमें घुसे नहीं है, नहीं तो फिर हम हर जगह दिखेंगे। है ना? एम्पावरमेंट जो होता है ना, इट इज़ नॉट दैट कि मतलब खाली हर जगह खड़े रहना या फिर अर्निंग स्टार्ट करना, लेकिन उसको कितना अच्छे से मैनेज करें, वो भी ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट गुरु भी बनना है अपना और मेंटरशिप में तो डेफिनिटली रहना है, सीखते रहना है और कॉन्फिडेंस रखना है। तो ये डेवलपिंग से डेवलप की तरफ हमारी कंट्री क्यों जा रही है? क्योंकि उसमें फाइनेंशियल डिसीजंस में फीमेल्स भी आ रही हैं। ये भी एक पार्ट है इसका। क्योंकि जब कहते हैं ना कि एक से भले दो, तो जब घर के 2 लोग डिसीजन लेंगे, भले ही एक जॉइंट डिसीजन ही लिया जाए, फीमेल का पार्ट थोड़ा ही हो कंट्रीब्यूशन का, बट स्टिल शी इज़ टेकिंग अ पार्ट एंड शी इज़ नोइंग, सो शी इज़ स्टैंडिंग स्ट्रांग। और स्ट्रांग रहने के लिए हर तरह का एजुकेशन ज़रूरी है, फाइनेंशियल एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। और वो ट्रेडिशनल नहीं, यही नॉन ट्रेडिशनल तरीके से ही मिलेगा। और जितने भी सेमिनार्स, वेबिनार्स और इस तरह से जो डिस्कशंस हमारे हैं, जैसे आप भी ये सेवा ही कर रहे हो इतने सारे लोगों को अवेयर कराने की, तो थैंक्स टू यू और Thank मोर पावर टू यू आल्सो। तो ये जर्नी में आपको भी बहुत सारी बेस्ट विशेस कि साथ में मिलके चलेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। So I think we डेफिनिटली। will wrap this up here. एक final note जो आप जो वुमेन्स या फिर मेंस also if they are watching this video, आप क्या उनको एक मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे बीच में मैंने कहा था कि नारी तो शक्ति है, तो अपनी इस शक्ति को पहचानो और कॉन्फिडेंस रखो खुद पे कि ये डिसीजन जो है ये हम दोनों को जॉइंटली लेना है। और अगर मैं सिंगल मदर भी हूँ तो मैं ये डिसीजन अगर ले रही हूँ तो सही ले रही हूँ। अपने पे कॉन्फिडेंस रखो और अपनी नॉलेज को हर दिन बढ़ाओ, तो क्या है आपके डिसीजन सही होते रहेंगे। और जॉइंट डिसीजन लेना हो तो भी मतलब अपना कॉन्फिडेंस अपने साथ रखो। तो Hmm. कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी ये दोनों अपना की है और आगे बढ़ना है बस। थैंक Absolutely. यू। Yes, yes, yes. So thank you so much for watching this episode of the Genius Well Show. ये काफ़ी insightful एक बहुत ही heart to heart conversation था जिसमें मैंने अभिलाषा मैम के साथ we talked about the topic that we both love to talk about which is women's and finance. So अगर आप एक woman हो आपने यहाँ तक ये podcast देखा है it genuinely shows up कि आप interested हो आप willing हो to take charge of your own finances. एंड इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विद अभिलाषा मैम इनकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी यू हैव टू चेक इट आउट शी इज डूइंग वेरी गुड वर्क एंड लेट्स हेल्प हर ऑन हर मिशन ऑफ हेल्पिंग 1 lakh women in finance. So yeah, that is about it for this episode. Thank you so much for watching it till here. Thanks to you Abhilasha ma'am for coming on the show and sharing थैंक your यू। amazing knowledge with us. Thank you so much.